Good morning, all of you. Today is 8 November 2022, and a very happy Guru Nanak Jayanti to all the aspirants. Let's start our Hindu analysis. So, on the first page, there was this landmark judgment on the EWS quota, which Supreme Court has recently given. So, they upheld the reservation, the 10% reservation to the poorest, and they are of the opinion that it will not affect the basic structure of the constitution. So there was a 3:2 split in which all the three judges were in favor of the judgment that 10% EWS quota is okay. However, two judges were of different opinion, and there it is given in the minority view. तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं कि जो मेजॉरिटी व्यू था उनका क्या कहना था कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है फॉर गिविंग रिजर्वेशन इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला इशू था वो कौन से केस में आया था ये हम आगे भी देखेंगे। आज के पूरा न्यूज़पेपर इसी के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप मेजॉरिटी व्यू और माइनॉरिटी व्यू पढ़ लीजिएगा। राइट, वो इसको भी हम आगे भी आर्टिकल एक पूरा है एडिटोरियल, विल कवर इन दैट सेक्शन ऑल्सो। ओके, मूविंग ऑन। So again, the COP27 is ongoing, and in this there was a mention of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. So for prelims point of view, you should learn about OPEC, where it is headquarter, how many members are there, is India a member or not. You should know this, and what are the essential function of OPEC. All right. So you should prepare this OPEC thing from the prelims point of view. Clear? On the next page, there was no such important news except this one, the surrogacy law. So here there is a mention of the Assisted Reproductive Technology Act 2021 and the Surrogacy Act. So you should take a short note on these two acts. What are the important provisions for both these acts, and what are the shortfalls, or you can say the shortcomings of these two acts. So what you can do is just type this act and write UPSC in front of this, make a Google search, and you'll get all the important things, all the important provision for these two related acts. Clear? And how the surrogacy law is related to your right to privacy, which has been provided, which have been guaranteed under आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कैसे आपस में रिलेटेड है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स में स्पेशली आर्टिकल 21 पे काफ़ी फोकस किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट, सो ट्राई टू रिलेट द करेंट थिंग विद द योर फंडामेंटल राइट्स, करेंट टू स्टैटिक लिंकेज, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, मूविंग ऑन। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था कि प्रोटेस्ट इन पुणे फॉर पेमेंट टू शुगर केन फार्मर्स। सो देर वॉज अ मेंशन ऑफ दिस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। सो ये FRP क्या है, ठीक है, ये किस किस चीज़ों के लिए दिया जाता है, स्पेशली शुगर के लिए रहता है FRP। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, कौन देता है, कौन डिसाइड करता है, एंड किस कमोडिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? अब जब आप FRP कर ही रहे हो, साथ में आप कर लेना MSP को भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हम अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए देते हैं। तो दोनों को तैयार कर लेना एक साथ। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे एक न्यूज़ थी बहुत ही ख़राब न्यूज़ में, आई वुड से दैट जो एक्स अंडमान एंड निकोबार के चीफ सेक्रेटरी थे, ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ गैंग रेप, इन्वॉल्वमेंट इन द गैंग रेप। तो उसके ऊपर पूरा इशू चल रहा है। सो ये जो केस स्टडी है आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स, जिसमें पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी, उनके बिहेवियर, उनको सिंपैथेटिक होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़, सो इट इज़ वेरी लेट्स से very demeaning for the entire bureaucracy. Okay, moving on. On this page there was no such important news. On page number 5 there was mention of this POXO Act. All right,
So what is POCSO Act? Okay, so this is basically Protection of Children from Sexual Offences Act. So you have to again search it, write the important, learn the, I would say rather, learn the important provisions. Okay, what are the positives and what are the negatives of these acts? So see, there is nothing negative, but there always have been some gaps which should have been filled, बट ऐसा हुआ नहीं, और जिसकी वजह से कुछ जो गैप्स हैं या जो कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है थोड़ा कहीं ना कहीं किसी एक्ट में रह जाता है. क्लियर. सो पॉक्सो एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना. क्लियर. एंड देयर वाज दिस मेंशन ऑफ टोडा कम्युनिटी. सो अगेन टोडा आपकी अगेन ट्राइबल ग्रुप है वेस्टर्न घाट्स. क्लियर. सो टोडा कम्युनिटी, या आप ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट सर्च कर लेना, ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. तो यहाँ पे आपको इरूला ट्राइब, टोडास, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. जो इरूला ट्राइब है, आपको एक अच्छी कहानी बताता हूँ. जो इरूला ट्राइब होती है ये आपकी नीलगिरीज में पाई जाती है. दे आर वेरी गुड स्नेक कैचर्स, सांप पकड़ते हैं ये. सो फ्लोरिडा में वहाँ पे बर्मीज, आई थिंक फ्लोरिडा या आई थिंक यूएस में किसी पर्टिकुलर एरिया में बर्मीज पाइथन, एक अजगर होता है बर्मीज पाइथन के नाम से, वहाँ पे एक इन्वेजिव स्पीशीज का फैल गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है. सो दे हैव टेकन दीज इरूला ट्राइब्स फ्रॉम इंडिया and they have sent them to USA so they can go and capture these pythons. So ये होता है हमारे देश की ताकत, समझ रहे हो भी. चलो ठीक है, किसी और तरीके से है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज ट्राइब्स फॉर स्नेक कैचिंग. क्लियर. सो ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट सर्च कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आती हैं उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट करके रख लीजिएगा कहाँ पे है. ठीक है, बस नाम जानना ज़रूरी है और लोकेशन ट्राइब्स के केस में. एंड वेदर दे आर इंक्लूडेड इन PVTGs, जो कल हमने न्यूज़ देखी थी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसमें आते हैं कि नहीं, ये आप उनको देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको उस पॉक्सो पे ध्यान देना है. अगेन सेकेंड न्यूज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, नील कुरिंजी फ्लावर्स. सो जो नीलगिरी, इसका नाम नीलगिरी क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस नील कुरिंजी फ्लावर्स. सो ये आपके पूरे वेस्टर्न घाट्स में उगती हैं और एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे ब्लूम, और इनको देखने के लिए ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है, टूरिस्ट फुटफॉल हैज जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 15 lakhs और आई थिंक 1.5 crore lakh दिस ब्लूमिंग सीजन. ओके, 15 lakhs तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है ये. एंड तो ये नील कुरिंजी फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देख लेना आप लोग कि कहाँ पे उगता है, कब उगता है ना. इसका साइंटिफिक नेम ज़रूर पढ़ लेना, यूपीएससी कई बार ऐसा पूछता है. ओके, नेक्स्ट देयर इज न्यूज़ ऑन, yes, so this entire article you have to read, economic inclusion, this is entirely based on the recent EWS judgment. तो ये पूरा पढ़ लेना आप, यहाँ पे लंबा सा आर्टिकल है. इसमें बेसिकली अप्रोच बताई गई है कि क्यों जो ये रिजर्वेशन का था EWS, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था. सो 1992 में इंदिरा साहनी केस, उसमें 9 जज की बेंच बैठी थी, उन्होंने जो OBC रिजर्वेशन की उस टाइम बात की थी उसको फेवर किया गया, बट उस टाइम इन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया सब के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, कोर्ट ने लेकिन उस टाइम EWS रिजर्वेशन को एडिशनल 10% उस टाइम भी मांग की गई थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, बट उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट की इस डिमांड को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था. कि उस टाइम कोर्ट ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन सोनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया. आपको पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया जाता है, सोली इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दिया जाता था. बट नाउ दिस हैज़ बीन चेंज्ड. तो इस पूरे आर्टिकल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इस वाले आर्टिकल में द एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान टाइज. तो इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना है कि क्या बेसिकली इशू चल रहा है,
एंड लास्ट वन, इंडिया पाकिस्तान टाइज में क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। बहुत ज़्यादा इसमें तो चीज़ें दी नहीं गई हैं, इसलिए सो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लेना। ओके, नाउ दिस इन दिस आर्टिकल द फ्रंट लाइन्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो लाइफ, इसमें पोषण अभियान का मेंशन किया गया है। पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड पोषण अभियान, तो इसके बारे में आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है इसको। पोषण अभियान में क्या क्या टारगेट्स हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के क्या क्या टारगेट्स हैं, आपको इसको तैयार करना है। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ देयर वाज अ मेंशन ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, सो G20 के बारे में आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। ओके, इसमें फूड सिक्योरिटी का मेंशन है। फूड सिक्योरिटी आपके GS पेपर 2 और 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्कीम के नाम दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, तो इसको भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज दिस थिंग। यहाँ पे एक अच्छा इंफॉर्मेशन दिया था, डेटा आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंट ऑफ GDP पिछले 10-15 सालों में क्या रहा है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द इन्वेस्टमेंट फ्लो इन इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द पास्ट डेकेड। इस टाइप से स्टेटमेंट UPSC बहुत देती है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं हुआ, there were many ups and downs. Similarly, corporate tax as a percentage of income tax, यहाँ पे टोटल GDP यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ग्राफ्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, और अपने उसमें बना भी लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का दिया हुआ है। ओके, तो ये GS पेपर 3 के हिसाब से बहुत अच्छा है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है टैक्स जो इंडिया का है स्ट्रक्चर, उसमें आप इस टाइप के ग्राफ्स भी बना सकते हो। ट्रेंड शो करने के लिए आपको एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड दिखा सकते हैं आप, ठीक है। नाउ देयर वाज दिस ह्यूज बिग आर्टिकल ऑन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। सो ये इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सबको अगर पता हो कि स्टेपी ग्रासलैंड विच कवर्स पार्ट्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, दीज आर नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दे आर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है वर्ल्ड में, ठीक है। और जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो ग्रेन की सप्लाई है, वीट की सप्लाई है, ये काफ़ी हैम्पर हुई है। तो इसमें दो चीज़ें आपको तैयार करनी। पहले तो ये जिस्ट पढ़ लेना, नो नीड टू रीड द एंटायर आर्टिकल, तो इसमें आप जिस्ट पढ़ लीजिएगा साइड में। सेकेंड वन इज ब्लैक सी, यहाँ पे जो न्यूज़ में है, तो आपको ब्लैक सी ऑन गूगल ऑन वर्ल्ड मैप सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। देन ब्लैक सी एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स ब्लैक सी को टच करते हैं, राइट। सो एक शॉर्ट फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, GURTBUR, है ना, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया। सो इस टाइप से थे। आप एक बार कंट्रीज़ के नाम देख लेना, यही मिलेगा आपको। 5 कंट्रीज ऐसे टच करती हैं। तो ये आप गूगल सर्च करके उसके स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास, या आप अपने नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थर्डली इस आर्टिकल में एक FAO का मेंशन था, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी तैयार कर लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इट इज़, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस क्या क्या चीज़ हैं, क्या आप नोट कर लेना। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कब से रहा है, ऑल दिस थिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे, हाँ, जैसे गुरु नानक जयंती है, तो आप क्या कर सकते हो कि गुरु नानक एंड सिख रिलीजन के बारे में जो भी उनके सारे गुरुज हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक टिल लेट्स से द लास्ट सिख गुरु। तो उन सबके रोल्स के बारे में आप देख लीजिए कि इन्होंने क्या क्या चीज़ मेन चीज़ की थी। जैसे गुरु अर्जन देव हो गए, है ना, गुरु गोविंद सिंह हो गए। तो इस टाइप से सभी सिख गुरु के आप रोल्स एंड जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो शॉर्टली, ओके। देन देयर वाज दिस मेंशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये NPR है क्या, ठीक है। NPR के बारे में आप पढ़ लीजिएगा ज़रा। NPR एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये दोनों चीज़ों के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। NRC का मेंशन है यहाँ पे, देखो 3 की टर्म्स आ रहे हैं, NPR, NRC
एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इन तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ बोली गई है इन सब के अंदर, कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। और उस पूरे आर्टिकल को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर वाज दिस मेंशन ऑफ FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो इसके बारे में भी आपको इसके सारे प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है। तो जस्ट डू अ गूगल सर्च FCRA UPSC, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और FCRA क्यों बना गया था? टू कंट्रोल द फंडिंग ऑफ दिस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs के, ठीक है। तो ये आपके GS पेपर 2 में NGOs एंड देयर रेगुलेशन, ये उसमें मेंशन ही है, सिलेबस का पार्ट है। तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। FCRA अपने अलग से भी आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। सो अगेन रिजर्वेशन आपको सब जगह दिखने वाला है इस पूरे हफ्ते। सो जस्ट डू वन थिंग, एक बार इसको तैयार कर लो, नो नीड टू मूव हियर एंड देयर, बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से आपको पता है कि 10% EWS कोटा कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना आप, ठीक है। नाउ यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट चीज़, पूरा पेज आप देख रहे हो EWS कोटा पे ही है, तो ये इस पूरा वीक 10 दिन चलने ही वाला है। तो आप बस एक बार तैयार करना, नो नीड टू रीड अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंशन था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, ठीक है। तो गुजरात इलेक्शंस और ये सब हिमाचल इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, नोट इट डाउन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगेन देयर वाज दिस मेंशन ऑफ चाइना एंड ताइवान इशू। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, चाइना ताइवान इशू, UPSC सर्च करके कि क्या इशू है और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। थोड़ा सा ब्रीफली आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट में चाइना और ताइवान में इशू, और ये दूसरे लोग अगर ताइवान विजिट कर रहे हैं तो चाइना को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो जस्ट डू अ गूगल सर्च चाइना ताइवान UPSC, तो आपको पूरा एक मतलब क्रोनोलॉजी में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, एक नोट डाउन कर लेना पढ़ के, दैट्स इट, ठीक है। सीक्वेंस में कर लेना, क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, ऐसे करके 1 कंट्री 2 सिस्टम, इस टाइप की चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, क्लियर। तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा। देन देयर वाज दिस गुड आर्टिकल ऑन ऑफ विवेक देबरॉय। इन्होंने एक मेंशन किया है कि सिंगल GST रेट, डायरेक्ट टैक्स एंड एग्जेप्शन विल बी आइडियल। सो प्रोग्रेसिव रेट्स वर्क बेस्ट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो प्रोग्रेसिव रेट्स क्या होता है ना, प्रोग्रेसिव मतलब अगर लेट्स से किसी की इनकम 5 lakhs है तो उसको लेट्स से 10% इनकम टैक्स देना है। लेट्स से किसी की लेट्स से कि किसी की 10 lakhs है तो उसको भी ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे मेंशन की थी, तो आप यहाँ पे GST के बारे में पढ़ लेना और इनके कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, डेटा वगैरह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोट डाउन करने के लिए, एग्ज़ाम में अपने आंसर के साथ मेंशन करने के लिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, 3 टाइप के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। यही था आज के पेपर में ओवरऑल, ज़्यादा इसमें और कुछ थी नहीं चीज़ें, ठीक है। तो इतना आप कर लो डेली बेसिस, बस आप इतना ही करते रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर से जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं हम कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में क्या चीज़ें यूज़ करनी है आपको, राइट, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है मुझे एटलीस्ट हम वो समझ में आ जा रहा है, ओके। और उस आर्टिकल से पिक करना क्या है, हमें क्या चीज़ें उठानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, आपको देखना आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको फील होगा कि यार मेरी करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और जब आप कोई करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे ना, आपको लगा यार यही तो चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, तो आपका एक सेकेंड रिवीजन का भी काम कर देगा, ओके। ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।